Hello everyone, today's topic is combustion and flame. In this, we will learn about the process of combustion and its products and what is a flame. So, first question here arises is if we talk about fuels, what fuels are used for running automobiles or what fuels you use at your home? So, the answer to this question will be here. Fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, CNG, etc. All these are fuels. Some of them are liquids, some are solids, and some are gases. You are familiar with the burning of a candle. What is the difference between burning of a candle and the burning of fuel like coal? So the difference is flame. In case of the burning of a candle, a flame is produced, but in case of burning of coal, there is no flame produced. Now we come to the topic, what is combustion? So the definition will be a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible, or it is also called a fuel. The fuel may be solid, liquid, or gas. So a fuel is a substance which undergoes the process of combustion. During this process, the whatever the fuel is that react with oxygen or air, and sometimes it produce the heat, and sometimes it also produces the light. So the process is called combustion, and the substance which undergoes this process is known as fuel. We were told that food is a fuel for our body. Does our body also use fuel? Yes. How? So here we see in our body, food is broken down, reaction with oxygen, and heat is produced, and that process is known as respiration. During this process, the food is broken down into smaller parts and energy is produced in our body. Now we come to the activity 6.1. In this activity, we will find out what is a combustible substance and what is a non-combustible substance. So here we can see a list. If we try to burn wood, or if we try to make it catch fire, the wood will catch fire easily, so it is a combustible substance. In second case, paper is also a combustible substance. Iron nails will not burn, so they are non-combustible. Kerosene oil is combustible. Stone piece is non-combustible. Straw is combustible. Charcoal is combustible, matchsticks are combustible, and glass is non-combustible. So the substance which undergoes combustion or they burn easily are called combustible substances, whereas the others which do not burn are known as non-combustible substances. Now we come to another activity, that is activity 6.2. In this activity, what we see is a candle is put on a wooden block and there is a glass or a beaker to cover it, and what we see in different situations is, in case first we see that there is an entry for air की entry यहाँ पर हो सकती है from below, and the glass is covered, but because the flame is getting the air or oxygen from below, so it will keep on burning, it will not extinguish. In the second case, what happens is the entry of the air is blocked from the bottom, so the flame is not getting any oxygen or air, so we see that it is flickering and it is producing some smoke. This is smoke, so it is about to be extinguished. Whereas in third case, what we see is we have covered it from the top completely, and from bottom also there is no entrance for air, so we see that the flame goes off completely and it extinguishes. It shows that O2 or oxygen is important for the process of burning. O2 is the very important factor for the process of burning.
Then we come to the next activity. It is 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stops burning? So students, in this also we will take a piece of wood or charcoal which is burning and we will place it on tawa. अब जब हम इसको ग्लास जार से कवर कर देंगे या टम्बलर से कवर कर देंगे तो क्या होगा कि जो ये बर्न हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, बर्निंग उसमें ख़त्म हो जाएगी। तो बर्निंग उसमें स्टॉप हो जाएगी, इसका रीज़न सिंपल सा है कि हमने अभी कहा था कि बर्निंग या कंबशन के लिए O2 या फिर एयर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर एयर या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बर्निंग सब्सटेंस को, देन इट विल स्टॉप बर्निंग। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. Can you guess why? तो जब भी हमें कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन के जो क्लोथ्स हैं उनमें किसी तरह फायर आग लग जाती है, आग पकड़ जाती है, तो उसे एक ब्लैंकेट से हम कवर कर सकते हैं। ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं का मतलब कि हम ब्लैंकेट से कवर करके वहाँ पर क्या करते हैं, तो उससे हम ऑक्सीजन या O2 आप कह सकते हो या एयर की जो सप्लाई होती है उससे हम कट कर देते हैं। आफ्टर वी रैप द पर्सन इन द ब्लैंकेट, वी कट द सप्लाई ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई को अगर हम कट कर देते हैं तो बर्निंग के प्रोसेस में कमी आएगी, इट विल स्लो डाउन। Now recall some of your experiences. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? सो अगर हम बात करते हैं कि क्या सब्सटेंसेस अपने आप से बर्न होने लगते हैं, अपने आप जलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक मैच स्टिक को बर्न करते हो तो उससे पहले आप उसे रब करते हो। जो उसके मैच बॉक्स के साइड में आपको एक स्ट्रिप दी होती है फास्फोरस की, तो उसके ऊपर आप उसे रब करते हो तभी वो जलना स्टार्ट करती है। इसी तरीके से अगर हमें एक पेपर को बर्न करना हो तो उससे पहले भी हमें उसे हीट करना पड़ता है। तो पहले हमें चीज़ों को थोड़ा हीट करना पड़ेगा तभी वो स्टार्ट करेंगी बर्न होना। During extreme heat of summer at some places, dry grass catches fire. From the grass it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. So you all must have heard about the forest fires. Forest fires क्या होती हैं कि ये अपने आप से ही स्टार्ट हो जाती हैं और फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पर कि बहुत समर्स की वजह से जो ग्रास है, जो लीव्स हैं, वो सारे बहुत ड्राई हो गए होते हैं और वहाँ पर ये अपने आप से कैच करती है फायर और इससे स्प्रेड होते होते ये पूरे ही फॉरेस्ट को बर्न कर देती है। डू these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? सो यहाँ पर आ जाती है डेफिनेशन। The lowest temperature at which a substance catches fire is called the ignition temperature. वो टेम्परेचर जितना कि हमें देना पड़ेगा किसी सब्सटेंस को जब तक कि वो फायर को कैच नहीं करता है, उसको हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो इतना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा तभी कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर सकता है। जब तक इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं होगा तब तक बर्निंग या कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्योंकि मैच बॉक्स के साइड पर रफ करने पर उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी से जो फॉस्फोरस का जो बर्निंग टेम्परेचर है वो रीच हो जाएगा, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं और मैच स्टिक जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी। The history of the matchstick is very old. More than 5,000 years ago, small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matchsticks in ancient Egypt. And the modern safety match was developed only about 200 years ago. तो पहले इसकी इन्वेंशन जो हुई थी मैच स्टिक की वो इजिप्ट में।
We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. यानी कि कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता है. हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग on a burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम पैन में कुकिंग ऑयल डालकर उसे हीट करते हैं तो क्या वो अपने आप से उसमें फायर कैच करेगी, या केरोसिन ऑयल या वुड है वो भी अपने आप से फायर को कैच नहीं करते हैं. तो वो फायर को कब कैच करेंगे? ओनली जब हम उन्हें इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, उनका हीट करेंगे और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे, तब वो फायर को कैच कर लेंगे. बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. अगर आप सिंपली एक वुड का पीस लोगे और उसे बर्न करोगे तो वो जल्दी से कैच नहीं करेगा फायर को. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? सो द आंसर इज़ येस. अगर हम केरोसिन और वुड की बात करते हैं तो जो केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर है वो जल्दी अटेन हो जाता है और वो इजीली बर्न होने लगता है, जबकि वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इतनी जल्दी अटेन नहीं होगा. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? The following activity shows that it is essential for substance to reach ignition temperature to burn. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम केरोसिन ऑयल को सेफली स्टोर करें. Then we come to activity 6.4. Be careful while handling burning candle. In this activity, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 burning candles ली गई हैं. These are the 2 burning candles और इनके ऊपर हमने 2 पेपर कप बना कर रखे हैं. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe? Now what we see, we have taken 2 candles, both are lighted और यहाँ पर हमने एक कैंडल के ऊपर एक पेपर कप, दूसरी कैंडल के ऊपर दूसरा पेपर कप रखा हुआ है. बट इन फर्स्ट केस वी हैव पुट अ लिटिल वाटर इनसाइड दिस पेपर कप, बट इन द सेकेंड केस देयर इज़ नो वाटर इनसाइड द पेपर कप. तो अब आप बताओ कि यहाँ पर कौन सा वाला जो पेपर कप है इट विल कैच फायर क्विकली. सो वी विल सी दैट इन द सेकेंड केस जहाँ पर कि वाटर नहीं है पेपर कप के अंदर, इट विल स्टार्ट burning quickly as compared to the first one. It means that the ignition temperature of this one is lower as compared to this one. तो जिसका ignition temperature low है वो जल्दी start हो जाएगा burn होना. अब यहाँ पर क्योंकि हमने वाटर को फिल किया था तो वाटर ने इसका ignition temperature को बढ़ा दिया है और ये burn नहीं होगा बहुत जल्दी. If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. So यहाँ पर ignition temperature का मैं आपको जो टॉपिक है वो समझा चुकी हूँ. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और जो बहुत ईजिली फायर को कैच कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. इसके एग्जांपल हैं पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी एक्सेट्रा. तो कई बार आपने देखा होगा कि सम वैन्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट दीज और उनके ऊपर लिखा भी होता है हाईली इनफ्लेमेबल. इट मीन्स दैट दीज व्हीकल्स आर ट्रांसपोर्टिंग समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर सकता है. तो इसको बहुत ही केयरफुली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी कंट्रोल फायर. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. तो ऐसे केसेस में हम कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं फायर को स्टॉप करने के लिए. सो देयर इज़ अ आंसर ऑफ फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड आती है और वो पूरा वाटर का जो सप्लाई है उसकी वजह से वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है. वाटर कूल्स डाउन द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो और फिर वो बुझ जाती है आग. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. So जो भी extinguish करने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें हमें
O2 या एयर की सप्लाई को कट करना होगा पहले। तो एयर या O2 की सप्लाई को कट करना और इग्निशन टेम्परेचर को बिलो कर देना, तो इससे जो बर्निंग है, जो फायर है, वो स्टॉप हो जाएगी। So, what is a fire extinguisher? The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both. या तो हम इससे सप्लाई ऑफ एयर को कट कर देते हैं या फिर फ्यूल का जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर, उसे नीचे ले आते हैं, या फिर ये दोनों ही काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर। और इस तरीके से जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। ईजिली जो हमें अवेलेबल होता है वो होता है वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। तो अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से फायर प्रोड्यूस हो गई है तो वहाँ पर हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाटर का यूज़ हम तभी कर सकते हैं अगर वुड या पेपर जैसे मटेरियल्स के वजह से फायर प्रोड्यूस हुई है। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर का यूज़ हम नहीं कर सकते आग बुझाने के लिए अगर फायर प्रोड्यूस हुई है ऑयल या पेट्रोल से। Do you recall that water is heavier than oil, so it sink below the oil and oil keep burning on the top? तो क्योंकि ऑयल जो है वो लाइटर होगा और वाटर हैवी होगा तो वाटर सेटल डाउन हो जाएगा और ऑयल उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा और बर्निंग का प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। For fires involving electrical equipment or inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. तो अगर हमें ऐसी फायर्स को कंट्रोल करना है जो पेट्रोल या किसी और केरोसिन, डीजल वगैरह की वजह से लगी है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ जो फायर एक्सटिंग्विशर है, बिकॉज CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन। इसका रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है, CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन एंड कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। Since the contact between fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं कि एक तो ये हैवियर होता है और कवर कर देता है फायर को एक ब्लैंकेट की तरह, एयर सप्लाई को कट कर देता है और फायर कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हार्म भी नहीं करता है। अब इसे कैसे स्टोर किया जाता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर्स। इन व्हाट फॉर्म इज LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सिलेंडर्स CO2 expands enormously in volume and cool down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. तो इसीलिए इसे हम एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसके अलावा और फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। So there are different types of combustion. First type is rapid combustion. In such type of combustion, the fuel or the combustible substance easily gets ignited or burnt. इसका एग्जाम्पल है गैस। लाइक गैस को जैसे हम हीट सप्लाई करते हैं, गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कम्बशन। इसी तरीके से जो फास्फोरस है वो भी रैपिड कम्बशन शो करता है और इजीली बर्न हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड टाइप ऑफ कम्बशन इज स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन में हमें कोई भी इसको कोई कॉज या कोई इग्नाइट नहीं करना पड़ता है किसी मटेरियल को और वो अपने आप से फ्लेम्स में चेंज हो जाता है। तो इस तरह का कम्बशन होता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। We generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. Such reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the cracker. तो जो क्रैकर्स में हम देखते हैं वो होता है एक
explosion. So now we will discuss about a flame. What is a flame? To learn that, we can imagine of the LPG gas flame, or we can look at this table here. In this table we have got some materials and it is written forms flame or does not form flame. So candle forms flame, magnesium forms flame, camphor forms flame, kerosene straw forms flame, and charcoal does not forms flame. So some materials forms flame, others don't. Here we can see in the diagram colors of a candle flame and the flame of a kitchen stove. This is yellow in color and this is blue in color. Moving on to the next diagram, we have three types of lamps here. This is a kerosene lamp, this is a candle, and this is a Bunsen burner. We can see these have different types of flames, different colored flames. So structure of a flame is the next topic. The substance which vaporizes during burning gives flames. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. So only those materials form flame which vaporize on heating. Now we will see an activity. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? So in this activity, what we will observe? We will observe a dark color. Let's move on to this activity. When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate or slide into the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds. So what we will see in this case, we will see a dark colored ring is formed over the glass slab or slide. A circular blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame. So the blackness is due to the unburnt carbon particles. Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 seconds. Notice that the portion of copper wire just outside the flames gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of flame has a high temperature? So the answer is yes. And now we will discuss about the different zones of a candle flame. So this is the different zones of a candle flame diagram. यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैंडल फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं और उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं. सो दिस इज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन. आउटर मोस्ट जोन है ये और यहाँ पर कम्बशन कंप्लीट होता है. तो क्योंकि कम्बशन कंप्लीट हो रहा है उसे कंप्लीट एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, तो इस फ्लेम का जो कलर होगा वो होगा ब्लू. सेकेंडली वी हैव द मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन. जो मिडिल जोन है वो पार्शियल कम्बशन की होगी. पार्शियल मीन्स यहाँ पर पूरी एयर सप्लाई को नहीं मिल रही है, तो फ्लेम का जो कलर है वो ब्लू नहीं होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर येलो. और थर्ड जो फ्लेम है वो है इनर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्नड वैक्स वेपर्स. अब अनबर्नड वैक्स वेपर्स हैं और एयर सप्लाई कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर जो फ्लेम का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा. यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि जो हॉटेस्ट पार्ट होगा इस फ्लेम का वो होगा इसका आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्बशन, क्योंकि यहाँ पर कम्बशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है. मॉडरेटली हॉट होगा जो मिडिल जोन होगा पार्शियल कम्बशन का, और लीस्ट हॉट जोन का जो पार्ट होगा वो होगा इनर मोस्ट
ब्लैक जोन, जो कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर की जोन होती है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स के इसमें फ्लेम के पार्ट्स पढ़ लिए। Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? तो ये गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए ज्वेलर्स जो हैं वो आउटरमोस्ट जोन जो फ्लेम की है उसको यूज़ करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो आउटरमोस्ट जोन होती है वो हॉटेस्ट होती है और वहाँ पर ये मेटल्स ईजीली मेल्ट हो जाते हैं। Then next topic is what is a fuel. Recall that the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene. तो अगर हीट एनर्जी हमें कहीं भी चाहिए तो उसके लिए हम जो सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं वो वुड, चारकोल, पेट्रोल या फिर केरोसिन हो सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फ्यूल्स कहते हैं क्योंकि ये बर्न हो सकते हैं और बर्न होने पर ये हीट और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडीली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट अ moderate rate and it produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substance or residue. तो ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं वो एक गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल की कैरेक्टर्स हैं। तो जो एक गुड फ्यूल होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बी चीप, इट बर्न्स इजीली इन एयर, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट डज नॉट लीव एनी वेस्ट और रेसिड्यू। देर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एट आइडियल फ्यूल, लेकिन कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं हो सकता जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हों। तो कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं होता है। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। फ्यूल्स ऑल्सो डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स। नेक्स्ट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स कि हमें लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ करने पर अगर मोर अमाउंट ऑफ हीट मिले तो वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होगा, दैट फ्यूल विल बी मोर एफिशिएंट। सपोज यू वर asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel, which fuel would you prefer? तो आप इनमें तीनों में से कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे? तो आप वो फ्यूल प्रेफर करोगे जो आपको कम यूज़ करना पड़े और जल्दी आपका जो वाटर है वो बॉयल हो जाए। तो ऑब्वियसली इन सब में से आप यूज़ करोगे LPG। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? तो यहाँ पर इसका आ जाती है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value, and the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kg, and we write it as kJ per kg. तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट combustion of 1 kg of a fuel मीन्स अगर हम किसी भी फ्यूल का 1 kg अमाउंट बर्न करते हैं उससे जितनी हीट या लाइट प्रोड्यूस होगी दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं किलोजूल पर केजी के यूनिट्स में। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कैलोरीफिक वैल्यू है डिफरेंट फ्यूल्स की, और जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। उसका कम अमाउंट बर्न करने पर हमें मोर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मिलेगी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स के जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम दिस। Burning of fuels lead to harmful products. It is one of the most important topic कि अगर हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। वन सच गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है जब हम बहुत ज़्यादा फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा को अगर हम बर्न करते रहते हैं। तो इस तरह से अगर बर्निंग हम करते रहेंगे तो इससे हो जाएगा
ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे और जिससे डिफॉरेस्टेशन भी होगा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब वैसे तो ये CO2 रिलीज़ करते हैं, बट अगर इनको इनकम्प्लीट एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत पॉइजनस गैस है और हमें इसीलिए कभी भी क्लोज रूम में कोल बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर CO प्रोड्यूस हो सकती है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि CO2 रिलीज़ करने पर ग्लोबल वार्मिंग होगी जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और हॉटनेस यहाँ पर बढ़ जाएगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब SO2 जो गैस है वो भी एक तरह से एक पॉल्यूटिंग गैस है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। मोर ओवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब हम एक टर्म पढ़ेंगे एसिड रेन। Oxides of sulfur and nitrogen dissolve in rainwater and form acids. Such rain is called acid rain. तो जब सल्फ़र और नाइट्रोजन जैसे गैसेस के ऑक्साइड्स डिज़ोल्व हो जाएंगे रेन के साथ तो फिर प्रोड्यूस होगी एसिड रेन। Acid rain is very harmful for crops, buildings and soils. You have already learnt about it in class 7th. The use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by other fuels like CNG. CNG is compressed natural gas and it is a non-polluting fuel. So with this we come to the end of our chapter.